Hello everyone. In this part of the video, we will discuss the IRODOV question number 1.1, 1.2, and 1.3. How we are solving, and we will try to solve in as simple as it can be. So we will also see the different process of solving a single questions. Means we will try to convey every single to single information what is required to solve this type of questions. In further video, we will also discuss some more questions. But today we will end with the question number 1. 1.1, 1.2 and 1.3. Let's start the question. First read the question. In physics, always do one thing in physics while solving the questions, either it is for JEE or for NEET. If you are solving the question, then first gather the information whatever they given in the question. So we will try to do that. A motorboat going downstream overcome a raft at a point A. 60 minutes later it turned back and after some time passed the raft at a distance L equals 6 km from the point A. Find the flow velocity assuming the duty of the constant. Thought so diagram, something diagram is given. Let's think. In the question they are talking that there is a motorboat whose duty is constant, means motorboat velocity is constant. Let's suppose it's v, and flow velocity, let's suppose it's vs, that is flow velocity, and we have to calculate this one. We have to calculate this flow velocity. Find the flow velocity. Means the flow velocity means the velocity of the river that is going downstream. Then a motorboat, दिस इज द मोटरबोट, ये इससे आगे निकल जाता है, एंड इससे आगे निकलने के बाद ये 1 घंटे बाद वापस टर्न बैक करता है. आफ्टर 1 आवर इट टर्न बैक, और जब टर्न बैक करके वापस आता है तो कुछ दूरी बाद ये देखता है ये जो राफ्ट है वो 6 किलोमीटर आगे आ गया. राफ्ट ऑलरेडी आगे आएगा ही आगे आएगा. क्यों? क्योंकि राफ्ट इसलिए आगे आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिवर की वेलोसिटी VS है, उसकी वजह से राफ्ट आगे आ गया. तो अब हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने का. मैथमेटिकली क्या क्या इक्वेशंस बनते हैं, जो इक्वेशन बनते हैं उसको देखते हैं. तो क्या हुआ कि ये VS हो गया, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ रिवर. कितना टाइम लिया, ये क्या कहते हैं 6 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लिया, 1 आवर. और मान लो ये वाला टाइम, ये जो इतना टाइम है, ये जो रिटर्न करने के बाद जितना टाइम लिया मान लेते हैं उसको T. तो VS इंटू T प्लस 1 इक्वल टू 6 किलोमीटर. मीन्स ये एक इक्वेशन 1 वी हैव मेड. मीन्स अगर हमें सिर्फ ये T पता चल जाए तो क्वेश्चन यही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे, यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. तो हम T निकालने के लिए कुछ और सोचते हैं. तो मान लेते हैं कि ये जो V है, लेट्स सपोज दैट दिस V इज let's suppose this V, let's assume that this V is the duty of the constant or velocity of the motorboat, whatever that is given. That is not given, we assume this. Then try to make a new equation also. Then we will form the equation in this manner. If it is मतलब जब डाउन स्ट्रीम आ रहा है तो रिवर के वेलोसिटी के साथ इसका वेलोसिटी ऐड हो जाएगा. तो V प्लस VS इंटू 1 आवर माइनस मीन्स ये वाला डिस्टेंस, ये जो क्योंकि इस समय तक तो ये 1 आवर चला, माइनस V माइनस VS मीन्स इसमें से अब रिवर की वेलोसिटी माइनस हो जाएगी. V माइनस VS इंटू ये कुछ टाइम T, that is equal to what is given, that is equal to 6. That is equal to 6. Now we will solve the both equation. We will do V plus VS minus V into T plus VS into T is equal to 6. And we will use this from first equation, that is VS into T. VS into T plus VS is equal to 6, and VST plus VS, this is VST plus VS is equal to 6. Then V is equal to VT means T is equal to 1 hour. We get T is equal to 1 hour, and as we get T is equal to 1 hour, we will put this in. VS into 2 is equal to 6 kilometer, and this VS is 3 kilometer per hour. We have got the velocity of river as 3 kilometer. We have got the velocity as 3 kilometer per hour from this concept. Now this question we will think something different, and we will try to do some basic technique or something different technique we will try to do. Let's suppose we already know about if you are solving this question, I am assuming that you know the concept of relative velocity, and if you know the concept of relative motion, then you already know that जब भी हम जिस चीज़ के फ्रेम में आते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए रेस्ट हो जाती है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
हम लोग कोई भी चीज़ ऐसे टाइप के क्वेश्चन का एनालिसिस करने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट के, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के फ्रेम में जाते हैं और फ्रेम में जाके वहाँ से बॉडी को देखते हैं कि कैसे क्या मोशन हो रहा है, उसके बाद फाइनली जब सब सोच लेते हैं उसके बाद हम फ्रेम से उतर जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी वही कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग रिवर के फ्रेम में चले गए। तो व्हेन वी गो इन द फ्रेम ऑफ रिवर मीन्स अकॉर्डिंग टू रिवर फ्रेम, जब हम लोग रिवर फ्रेम में चले गए, सेम क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, जिससे मतलब आपको बिना पेन उठाए भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो ये रिवर फ्रेम में हम चले गए, तो रिवर फ्रेम में चले गए तो रिवर हमारे रुक गया। तो हम देख लेते हैं भाई रुक गया रिवर, तो हमारे लिए कुछ दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ मोटर बोट चल रहा है, राफ्ट भी अपने जगह से रुक गया, सिर्फ मोटर बोट चल रहा है। जब मोटर बोट चल रहा है तो यहाँ पे देखो, जब मोटर बोट चल रहा है रिवर रुक गया है, मोटर बोट गया 1 आवर के बाद रिटर्न किया, तो उसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा? वही भाई, जब कुछ दिक्कत है नहीं तो रोड पे ये 1 आवर गया तो 1 आवर उतना टाइम लगेगा, उसका ड्यूटी तो कॉन्स्टेंट है। तो 1 आवर सीधे हमें यहीं से दिख गया कि 1 आवर गया 1 आवर वापस आया, जो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया 1 आवर, वो सीधे 1 आवर यहीं से दिख गया। अब सिंपल इससे उतर जाएंगे, 6/2 कर देंगे, 3 किलोमीटर पर आवर। मीन्स बिना पेन उठाए भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे 1.1। दिस इज ऑल्सो द वे। हमने दोनों तरीके देख लिए, एक मैथमेटिकली तरीका भी देख लिया और एक ये नॉर्मल तरीका भी देख लिया। वी ऑल्सो डन बोथ द वेज। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the next question? That is question number 1.2. I am taking the page of question number 1.2. Where is the man? This is here. This is 1.2. I think you can see this. A point, a man or transfers half the distance with velocity v0. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for the half time and with velocity v2 for the other half time. Find the mean velocity of the point average over the whole period. और ये ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक में भी दिखती हैं, तो सब बोलते हैं कि इरोडोव बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आसान आसान भी क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन पक्का अपने 9th के एनसीईआरटी बुक निकालो, पक्का उसमें ऐसे ही टाइप का सेम क्वेश्चन दिया होगा। चलो देख लेते हैं। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जर्नी है, तो ये हाफ ऑफ द जर्नी, दिस इज d/2, दिस इज d/2, ऐसा ऐसा करके चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या कहते हैं वो निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज, मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो वही तरीका, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये ईजी क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इतना पार्ट वो v0 वेलोसिटी, हाफ ऑफ द पार्ट जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फिजिक्स में ऑलवेज हम क्वेश्चंस के थ्रू जाते हैं। तो हमें v0, हाफ ऑफ द पार्ट v0 वेलोसिटी से गया है, तो हाफ ऑफ द पार्ट का वो कितना हो जाएगा? टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है d/2, टोटल डिस्प्लेसमेंट d हो जाएगा। अब टाइम निकालते हैं, तो ये d/2 v0, ये पार्ट का टाइम हो गया। अब हमें इतना पार्ट का टाइम निकालना है, इतना पार्ट का निकालना है टाइम d के फॉर्म में, ताकि डी कट जाए, क्योंकि डी हमने अपने से ज्यूम किया है, और जब हम कोई वेरिएबल अपने से ज्यूम करते हैं तो हमारा फाइनल अटेम्प्ट होता है कि उसको कैसे भी करके हटा दें। तो यहाँ पे भी अगर डी के टर्म में जाए डी सारा कट जाएगा, जो हमने ज्यूम किया तो हो जाए। तो हम लोग कोशिश करते हैं टाइम को डी के टर्म में निकालने के लिए। तो क्या होता है, क्वेश्चन में दिया कि हाफ ऑफ द टाइम, तो यहाँ सपोज करते हैं, देखो यहाँ पर दिया t/2 इंटू क्या कर लेते हैं, t/2 इंटू v1 प्लस t/2 इंटू v2, तो यहाँ हमें मिल जाएगा d/2। तो यहाँ सीधे सीधे हमें क्या मिल गया, यहाँ आपको t मिल गया, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम यहाँ से t मिल गया, मतलब जो आगे टाइम लगा वो कितना आ गया, 2 काट देते हैं, तो t आ गया d/v1 प्लस v2, यहाँ से t आ गया, तो d/v1 प्लस v2, दिस विल बी कैंसिल। अब हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ये ऊपर चला जाएगा v1 प्लस v2 इंटू 2v0, नीचे आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस दैट इज d/2 v0 है, तो ये हो जाएगा दिस इज 2 एंड d दैट इज नॉट 2, दैट इज v1 प्लस v2 प्लस 2v0। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो हम लोग से कहीं एरर तो नहीं है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1.3 we will discuss the question number 1.3. 1.3 is also you can read this is also easy questions. This come in the category of not medium type questions, means only calculation is there. A car starts moving rectilinearly first with acceleration 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है। मीन्स पहले कार है एक, मैं क्वेश्चन आपको समझा भी देता हूँ डायग्राम से भी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना शुरू किया,
और ये इतना दूर तक एक्सेलरेट हुआ, उसके बाद ये कुछ दूरी कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर उसके बाद ये डीएक्सेलरेशन शुरू हुआ। मीन्स ये टाइम तक ये एक्सेलरेट हुआ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इस टाइम तक डी एक्सेलरेट हुआ सेम से डी एक्सेलरेट। तो ये पहले तो आपको दिख जाएगा, थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जितना टाइम ये इतना वेलोसिटी एक्सेलरेट होने में लगा, क्योंकि यहाँ तक वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो उतना ही टाइम ये डी एक्सेलरेट करने में लगेगा। तो मान लेते हैं कि लेट सपोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज टी, और हमें पूरा टोटल टाइम दिया हुआ है, तो एक्सेलरेट करने में कितना टाइम लगेगा, 25 माइनस टी अपॉन 2, और ये डी एक्सेलरेट करने में भी उतना ही टाइम लेगा, क्योंकि हमने टी माना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का टाइम, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इतना टाइम तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी चला और टोटल टाइम 25 सेकंड में दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन बन गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 72 इंटू 5/18 कर लो, दिस इज 20 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आ गया। देख लेते हैं। और टोटल टाइम तो आपको पता है 20 इंटू 25, ये आ गया 1/2 इंटू वी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी तो u इक्वल टू 0 है, तो ये टोटल कितना है ये टाइम में देख लेते हैं। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं। तो 1/2 इंटू 5 इंटू 25, ये इतना ही टाइम लिया, तो इतना डिस्टेंस ये आ गया। तो ये आ गया 1/2 इंटू 5 इंटू 25 माइनस t/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। प्लस अब इसके बाद यहाँ पे कुछ वेलोसिटी लेगा, वो ची वेलोसिटी चलेगा, वो कितना लगेगा v इक्वल टू u प्लस 80 लगा देते हैं। इससे 5 इंटू 25 माइनस टी अपॉन 2, ये आ गया वेलोसिटी। अब इसी वेलोसिटी से ये इस टाइम तक डिस्टेंस चला गया, तो वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस, तो 5 इंटू 25 माइनस टी अपॉन 2 इंटू टी, ये आपका आ गया यहाँ तक का डिस्टेंस। अब फाइनली डिस्टेंस निकाल लेते, इसमें भी वही आ जाएगा। अब इसमें भी ये वाला वेलोसिटी तो आ ही गया, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut कितना आ गया, वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी ये आया। तो 5 इंटू 25 माइनस टी अपॉन 2, और टाइम कितना लगा था वही 25 माइनस टी अपॉन 2 माइनस, और ये वाला जो टर्म आया 25 माइनस टी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। सीधे अब क्वेश्चन बहुत छोटा समय हो गया। अब सीधे सीधे हमें क्या मिल गया, 20 इंटू 25। सीधे सीधे यहाँ पे क्वेश्चन बहुत छोटा समय हो गया, 20 इंटू 25 मिल गया। इधर से हो गया 5/2 इंटू 25 माइनस टी इंटू टी। मैथ्स आती है, मैथ्स लगा लेंगे हम। 5/4 इंटू 25 माइनस टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, तो टी आ जाएगा 15 सेकेंड। मीन्स इतनी मैथ्स तो लगा ही लेंगे, लेकिन बाकी सारे तरीके सही हैं। और हमने कुछ तीनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। तीनों आसान क्वेश्चन से, उसमें कुछ भी टफ नहीं था। आप फर्दर मैथ सॉल्व कर सकते हैं। 3-4 की मैथ है। आप 11-12 के स्टूडेंट है, JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो हम श्योर हैं कि आपको इतनी मैथ्स आती होगी। और नहीं आती होगी तो मेरा डिस्क्रिप्शन में चैनल दिया हो, वहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन डाल दूंगा। और ये सोल्यूशन आपको कहीं मिलेंगे नहीं किसी बुक में, क्योंकि ये अपने तरीके से सोची हुई चीज़ें होती हैं। चलो, थैंक यू, बाय।